Hello to all class 11 students and class. I believe that you all are doing great, and today we'll be moving forward with the lesson number 3, problem of an economy, basic problems of an economy. Why we are calling them basic? Basically because basic problems are those problems which are found in any kind of economy. Economies are of different type. Some are developing, some are developed, some are capitalistic, some are free economies, some are socialist economies, right? Some are mixed economies. So this kind of problems, the one we are going to read, these kind of problems prevail in every kind of economy. Okay, children. Now, yesterday, what we did was this, that why generally the economic problem arises. I told you there are 3 reasons behind it, and I told you the reasons were that human wants are unlimited, the resources to settle down, you're satisfied, those wants are limited, and third was the uses of the resources are alternative. So this creates a problem of choice. Because of this reason only, because of these 3 reasons only, what happens? Your basic problems arises. So we are going to discuss today what are the basic problems. So we'll be starting with what to produce. The first problem that is faced is what to produce. Right? What to produce basically is the problem which has 2 aspects. Here again you have 2 sub-parts out here, and these sub-parts are, first you have to decide about, under this only you have to decide that which good to produce, which commodity to produce, and B, in what quantity. Right? So you basically have these 2 problems here. Now we'll move forward. What does it says? The first central problem which every economy has to face is the problem of what? What to produce. Okay, it involves 2 issues. It involves what? 2 issues. These issues are what goods and services to produce and in what quantity. Alright. Now in other words, it is the problem of determining the quantity of each commodity to be produced. First of all, we have to decide that which goods and services are to be produced, because there are many goods and services which can be made out of these limited resources. But which is the most important commodity which is required by the people, which is required by the consumer? We have to decide upon that which commodity is to produce. And after it is decided that which commodity is to produce, the another question which arises is, the other issue that arises is in what quantity, in what number we are going to produce these goods and services. Okay, this question arises directly from the fact that human wants are unlimited. Now, we know this thing. The first question, why it is arising? The first question is arising, the first sub part is arising due to the fact, due to the unlimited human wants. Due to unlimited human wants, this question arises. Right? Now, this question arises. Now, therefore, the fundamental task of the economy is to decide what commodity to produce and in what quantity. Now, this becomes what? The fundamental duty, the fundamental question, that what commodity to produce and in what quantity. Should it produce rice, or should it produce sugar, or should it produce cloth, or should it produce wheat, should it produce butter, or the country should produce guns? So these are the questions which arises, that which commodity is to produce. The society has to choose between 100 of goods. The society has to choose between hundreds of commodity. Now, why hundreds of commodity? Because human wants are what? Unlimited. There are n number of wants. They want everything, but it's not possible because the resources are scarce. So it becomes very, very important that the people has to choose. Right? There is a choice has to be made. It has to make a choice between the consumer goods and the food, or cloth, or furniture, or car. These all kinds of things. Similarly, it has to decide whether to produce civilian goods or the defense goods. This is also one of the basic thing.
It becomes very important for the society, for the producer to understand that we have to produce the producer good, the capital good, the civilian good, the defense good. What do we supposed to produce? ठीक है, because every kind of good is what required by the people. More offshore करनी है कि machinery करनी है, should it produce guns or butter? Problem of what to produce is the problem of resource allocation. Now problem of what to produce, ठीक है, problem of what to produce is a resource allocation problem. As I told you earlier also कि हम बहुत सारे गुड्स बना सकते हैं, लेकिन सारे गुड्स को बना पाना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, क्यों नहीं है? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि हम सारे गुड्स क्यों नहीं बना सकते? सारे गुड्स बना दो, बट इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि सारे गुड्स को बनाने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है. हमारे पास उतनी बिजली नहीं है, उतना पानी नहीं है, उतनी फैक्ट्रीज नहीं है, उतनी मशीनरी नहीं है, उतने लोग नहीं है. ठीक है, क्योंकि सारी चीजें क्या है, लिमिटेड मिली है हमको. मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, रिसोर्सेज आर स्केर्स, तो उनको ढंग से यूज करना, उनका एलोकेशन करना, ढंग से यूज करना क्या है, बहुत जरूरी है. व्हेन कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी डिपेंड्स अल्टीमेटली ऑन व्हाट द पैटर्न ऑफ डिमांड इज देयर. सो जब ये किसी कोई कमोडिटी प्रोड्यूस होती है किसी इकोनॉमी में, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें लोगों के डिमांड को ध्यान में रखना पड़ता है कि लोगों के नेचर क्या है, डिमांड का क्या, किस तरह के गुड्स मांगते हैं. क्या वो ज़्यादा चपातीस मांगते हैं, आटा मांगते हैं, कि ज़्यादा पिज्ज़ा मांग रहे हैं, ज़्यादा बटर मांगा जा रहा है, कि ज़्यादा कपड़े मांगे जा रहे हैं, तो किस तरह का पैटर्न है डिमांड का. सो डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड दे हैव टू डिसाइड अपॉन दैट. Alright, so for instance people, जैसे कि मान सकते हैं people ट्रॉपिकल कंट्रीज के जो पीपल है उनको कॉटन क्लॉथ्स चाहिए, और विंटर एरियाज के और जो कोल्ड एरियाज के जो पीपल है उनको वुलन क्लॉथ्स चाहिए. तो सिंपल, यू कैन सी दैट द पीपल लिविंग इन द डिफरेंट एरियाज हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ requirement. Like the people who live in tropical areas, summer warm areas, they need cotton cloths, more of cotton cloths. And whereas the people, those who live in cold areas, they need more of woolen clothes. So this is one of the examples. So it becomes the major point to wonder upon that which goods and services are to be produced, because producing goods and services, particular demand pattern is to be kept in mind, right? Demand pattern is to be kept in mind. So when we talk about that what to produce, we need to keep demand pattern in mind. If you just keep the demand pattern in the mind, that what is the pattern of the demand, what kind of goods do they frequently ask for, उसी तरह के goods क्या होंगे बनते हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपकी? फर्स्ट प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसकी दो सब प्रॉब्लम्स है, विच कमोडिटी टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी. ठीक है, द व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस आर एसेंशियली टू एस्पेक्ट ऑफ सेम क्वेश्चन. When we decide which commodity to produce, we decide at same time the amount to be produced of these commodities. The society has to choose between different kinds of goods. The society has to choose between 100 types of goods. Because why 100 types of good? Because the human wants are what? Are unlimited. Right? Now we'll move to another problem. What is the second basic problem is how to produce. Once the first problem is solved, that what to produce, जब पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, तब दूसरे प्रॉब्लम में आते हैं कि चलो ये तो डिसाइड हो गया कि क्या बनने वाला है और कितना बनने वाला है, ये भी डिसाइड हो गया. नाउ व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट इज टू डिसाइड दैट हाउ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज. जो गुड्स हमने डिसाइड कर लिए हैं कितने बनाने हैं और क्या बनाना है, उसको अब हम बनाएंगे कैसे. बनाने के बहुत तरीके हैं. आप मशीन को यूज कर सकते हो, आप लेबर यूज कर सकते हो. तो इनमें से हम क्या तरीका अपनाएंगे. आर वी यूजिंग ऑल ऑफ लेबर ओनली और नो मशीनरी, आर वी यूजिंग नो लेबर एंड ऑल मशीनरी, और आर वी यूजिंग अ पर्टिकुलर रेशियो ऑफ बोथ ऑफ देम. राइट, हाउ टू प्रोड्यूस. नाउ द सेकंड प्रॉब्लम which an economy has to face is how to produce. This is the problem of choice or method of technique of production. This is a problem of choice of method of production. ठीक है, प्रोडक्शन की हमारी जो चॉइस रहेगी, हम कैसे कौन सा मेथड ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल करेंगे, ये इसकी प्रॉब्लम है. ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम. द रिसोर्सेज
This question of choosing appropriate technique arises because there are various alternative methods or techniques. अब ये अराइज क्यों हो रही प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं प्रोड्यूस करने के, बहुत सारी टेक्निक है, तो बेस्ट टेक्निक क्या रहेगी जिसपे कम से कम खर्चा आएगा, ठीक है, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा और अच्छे से अच्छा गुड बनेगा बिना वेस्टेज के। हम इस तरह की टेक्निक को इस्तेमाल करना या चूज करना पसंद करते हैं। ब्रॉडली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक, ठीक है, आपकी ब्रॉडली देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक। ब्रॉडली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक। पहला आपका हो सकता है लेबर इंटेंसिव, जिसमें सिर्फ लेबर का इस्तेमाल होगा। दूसरा इज कैपिटल इंटेंसिव। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक कौन सी होती है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जिसमें ज्यादा लेबर इस्तेमाल होगा और कम से कम मशीनरी, मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल। एंड वेयरएज द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज अ टेक्निक वेयर वी आर यूजिंग मोर ऑफ कैपिटल एंड लेस ऑफ labor. A labor intensive technique are used more of labor and less of capital to produce a given quantity of output, whereas a capital intensive technique is that technique in which we are using more of machinery and less of what? Labor. Less of labor. All right. Now, example later, cotton cloth can be produced by either handlooms or by power looms. अब कपड़ों की बात करें तो कॉटन के जो कपड़े होते हैं या तो आपको हैंडलूम से बना सकते हो, हाथों से बना सकते हो उनको, या तो आप क्या करोगे पावर लूम से, बिजली के इस्तेमाल से, मशीनरी से यूज करते हुए बना सकते हो। सो एक ही चीज को प्रोड्यूस करने के क्या बहुत सारे तरीके हैं। नाउ इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोड्यूसर, फॉर द इकोनॉमी टू डिसाइड कि वो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेगी और कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है। ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। हमारा खर्चा क्या होगा, कितनी टाइम में कोई चीज़ बनेगी, प्रोडक्शन आउटपुट क्या रहेगा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इनको दिमाग में रखते हुए हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा फैक्टर हम इस्तेमाल करने वाले हैं। शुड क्लॉथ बी प्रोड्यूस विद हैंडलूम और पावर लूम? सिमिलरली, शुड इलेक्ट्रिसिटी बी जनरेटेड फ्रॉम कोल और वाटरफॉल? The root cause of problem also lies in the fact that the resources are scarce. हम सबको मालूम है, बार बार बोल रही हूँ मैं आपको, resources scarce है, इसीलिए सारी प्रॉब्लम क्या हो रही है, अराइज हो रही है। तो रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए we have to do production techniques. Now children, basically क्या है, there are two major determinants, दो खास चीजें हैं जिनसे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है। There are two major determinants of the type of technique to be used. What technique are to be used for production different goods on the level of technical knowledge? ठीक है, हमें क्या देखना पड़ेगा कि अगर आप जो टेक्निक यूज कर रहे हैं उसमें टेक्निकल नॉलेज की क्या रिक्वायरमेंट है। टेक्निकल नॉलेज की व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, ठीक है। The second factor which determines the choice of the technique is the relatively availability of different types of resources. तो पहली बात यह है कि अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज चाहिए, इट नीड्स अ लॉट ऑफ नॉलेज, कि भाई जैसे कि आपको बनाना है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाना है, या कंप्यूटर बना रहे हैं या कुछ हार्डवेयर बना रहे हो, तो उसमें क्या चाहिए, कोई भी आदमी उसको बना नहीं सकता। तो इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग, इन दैट केस यू नीड good resource, good skilled labor so that you can produce that particular software or that particular hardware. लेकिन अगर कोई ऐसा है कि सिर्फ आपको कुछ ज़्यादा सिंपल, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, सिर्फ आपको धागा बनाना है या आपको मोमबत्ती बनानी है, तो इन दैट केस व्हाट हैपन, एनी काइंड ऑफ लेबर विल वर्क। सो बेसिकली जब इसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, तो इसमें हमें दो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो भी टेक्निक इस्तेमाल होगी वो डिपेंड करती है पहले किस बात पे, पहले ये कि टेक्निकल नॉलेज कितनी चाहिए, मतलब कोई चीज बनाने के लिए क्या हमको बहुत ही स्किल्ड लेबर चाहिए, और दूसरा व्हाट आर द रिसोर्सेज विद अस, व्हाट आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है वो ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है, मतलब हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, उससे हम कितना, हमारे पास कितना चीज़ें अवेलेबल है कि हम उनसे अपनी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को डिसाइड कर सके। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा क्या बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे लिए डिसाइड करना। हाउ टू प्रोड्यूस अगर डिसाइड करना है तो उसमें दो टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। अब ये दो टेक्निक्स है, ये दो टेक्निक्स के को हम डिसाइड करते हैं इन दो सवालों से, ठीक है। Thus, labor surplus economies make more use of labor and technique as compared to labor scarce economies.
ठीक है, तो हमेशा याद रखना लेबर इंटेंसिव टेक्निक कौन से देशों में इस्तेमाल की जाएगी, कौन सी इकोनॉमीज में, जहां पे सरप्लस लेबर होगा, जहां पे बहुत लेबर मौजूद है, जैसे इंडिया, चाइना। ठीक है, ये कंट्रीज ऐसी है जहां पे आपको बहुत लेबर मिलेगा और लेबर सस्ता मिलेगा। तो इससे क्या होगा, आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी टेक्निक का डिसीजन इजीली ले सकते हो और लोगों को जॉब भी मिलेगी। ये भी एक रीजन है। ठीक है, भारत जैसी कंट्री में यू हैव वेरी लेस ऑफ कैपिटल, मशीनरीज बहुत कम है, मशीनरी के लिए पैसा बहुत कम है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादातर क्या करते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक की तरफ हम रुख करते हैं। तो ये क्या है, आपकी दो तरह की प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम्स हो गई है एक इकोनॉमी की। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। थर्ड प्रॉब्लम कौन सी है, बेसिक प्रॉब्लम क्या है, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहां हम डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फॉर whom टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द टोटल आउटपुट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन किसका, ऑफ द टोटल आउटपुट, या आप क्या कह सकते हो, और द नेशनल इनकम, और द नेशनल इनकम। मतलब जो टोटल आउटपुट है, ये टोटल जो पैसा देश ने कमाया उसको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना किसको मिलेगा। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ फॉर whom टू प्रोड्यूस। ओके, who shall get goods and services produced in the economy, or to put it another way, how is the national product is to be divided? Obviously goods and services would be acquired by those only who have money to pay it. अब goods और services तो उन्हीं को मिलेगा ना जो उसके लिए पेमेंट कर सकते हैं, but people who don't have money to purchase goods and services, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। It is not like that. So we have to make a decision कि जो हमारे नेशनल इनकम है या गुड्स एंड सर्विसेज जो टोटल प्रोड्यूस हो गई है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो कि हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ पहुंचे, और ये जो एक गैप है पुअर और रिच के बीच में, अमीर और गरीब के बीच में, वो क्या हो सके, कम हो सके। राइट, नाउ द प्रॉब्लम देयरफॉर tantamounts to the problem of distribution of income among the income earners. Distribution of income will determine the distribution of goods and services. जैसे जैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी लोगों के बीच में, जितनी ज्यादा इनकम जिसको मिलेगी उतनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज भी उसी को मिलेगी ऑब्वियसली, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा आपके पास आएगा, आपके पास उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, परचेजिंग पावर हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन इन विच यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट गुड्स एंड आर टू बी प्रोड्यूस। ठीक है, अब नेशनल इनकम की बात होती है, तो बेसिकली जब नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं तो पहले इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू नो व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए एक साल में, वो नेशनल इनकम है। ठीक है, तो उस नेशनल इनकम का लोगों में बंटना बहुत जरूरी है। तो जिसको जितना ज्यादा नेशनल इनकम का हिस्सा मिलेगा, उसके पास उतनी ज्यादा क्या आ जाएगी, परचेजिंग पावर आ जाएगी। तो ठीक है, लेकिन नेशनल इनकम को बांटने का तरीका कुछ इस तरह का होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति के पास क्या हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकि अमीर और गरीब कोई ना रहे, गैप ना रहे इन लोगों के बीच में। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, किसी भी इकोनॉमी में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए बहुत मेजर प्रॉब्लम बन जाती है। द सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड नेशनल प्रोडक्ट। सम टोटल ऑफ goods and services is called national income। ठीक है, जितने भी गुड्स एंड सर्विस हमने प्रोड्यूस किए उसको टोटल करते तो क्या मिल जाता है, नेशनल प्रोडक्ट मिल जाता है, जिसे नेशनल इनकम भी कहते हैं, which is distributed among various productive resources in a form of various types of factor income। अब इस नेशनल इनकम को we have to डिस्ट्रीब्यूशन करना है इसका। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन किस में करना है, अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है। अब प्रोडक्शन फैक्टर्स कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इन चारों के बीच में क्या करना है, हमको इस नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब आप बोलोगे क्यों डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही क्या हो पाया है, नेशनल इनकम बनी है। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की वजह से ही बनती है। तो उनको उनके काम के लिए क्या मिलना चाहिए, पैसा मिलना
चाहिए. Okay, when to what to produce, how to produce, for whom to produce are the three basic fundamental problems. ठीक है, ये आपने तीनों के तीनों प्रॉब्लम्स को पढ़ा और इसको थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश भी करी. What to produce जो है वो कहती है, प्रॉब्लम कहती है क्या गुड्स एंड सर्विसेज बनेगी और कितनी बनेगी. क्योंकि ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है, हम हर चीज चाहते हैं. हमें कभी शूज चाहिए, कभी बेबी फूड चाहिए, कभी हमें लिपस्टिक चाहिए, कभी हमको पर्स चाहिए, कभी हमको बुक्स चाहिए, कभी हमको शूज चाहिए, कभी ड्रेस चाहिए, कभी पेन चाहिए और भी बहुत कुछ, कपड़ा, क्लॉथ, गन, सब कुछ, बहुत सारी चीजें हैं. तो इतनी सारी चीजें प्रोड्यूस करनी है, सब प्रोड्यूस भी होती है, लेकिन कितनी कितनी होंगी प्रोड्यूस वो डिसाइड करना मुश्किल काम है. इसलिए हम उसको बेसिक प्रॉब्लम कहते हैं. लेकिन लोगों की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए हमको डिसाइड करना पड़ता है कि हम कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे और कितनी बनाएंगे. सेकेंड है हाउ टू प्रोड्यूस. सेकेंड प्रॉब्लम ये कहती है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हम बनाने वाले हैं ये तो हमने डिसाइड कर लिया है कि हम क्या बनाएंगे, लेकिन अब ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि वो बनेगा कैसे. क्या हम लेबर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे या कैपिटल मतलब मशीनरी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे. तो हमारी जो रिसोर्सेज हमारे पास है उनको देखते हुए हम डिसीजन लेते हैं. मतलब इंडिया जैसी कंट्री में हमारे पास बहुत ज्यादा मशीनरी नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है कि मशीनरी अरेंज कर सके. लेकिन हाँ, यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है कि हमारे पास लेबर बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है. तो इस लेबर को इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपने लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं. इससे क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस हो ही जाएंगी, लोगों को क्या मिल जाएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, जॉब भी मिलेगा, जिससे वो पैसा कमा सकेंगे और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकेंगे. थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस. जो भी देश के अंदर, फॉर होम टू प्रोड्यूस, जो भी देश के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन जो देश का है उसको जोड़ दे, चाहे वो गुड्स है चाहे वो सर्विसेज है, उनको जोड़ दे तो वो कहलाती है नेशनल इनकम. इस नेशनल इनकम को लोगों में बांटना क्या है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है. तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज देश के अंदर प्रोड्यूस हुई है उसको किस तरह से बांटा जाए, ये हमारी क्या है, प्रॉब्लम ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस है. ठीक है, हम इस तरीके से इस चीज को बांटेंगे कि क्या हो कि कम से कम गैप रह जाए अमीर और गरीब के बीच में. लेकिन ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि भारत जैसी कंट्री में पहले ही बहुत ज्यादा गैप है अमीर और गरीब के बीच में. बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है और बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम पैसा है. तो बेसिकली ये क्या है, तीन हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, और आगे भी जाके और भी हमारे पास प्रॉब्लम्स है. और भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये तीन मेजर प्रॉब्लम्स है जो हर इकोनॉमी फेस करती है और इसके आगे मैं आपको प्रॉब्लम्स पढ़ाऊंगी. दैट आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी.